So hi everyone, welcome to the Prep B. This is the I guess eighth GD or ninth GD, and this is the first GD which we are recording this year. Although we have took almost nine GDs so far. And okay, let's come to the rules of the GD. So you guys are participant. Let me name the all participant once again: Pratham Gupta, Satyam, Vaibhav Jain, Shreyash, Gaurav, Aman, Nandini, Nikhil. Okay, not Nikhil, Anmol, Aman Singh, Shagun, and Ankush. These are the participants. Is there anyone who left? कोई छूट गया है? किसी का नाम नहीं बोला मैंने. Vishwajit, your camera is not turned on. Please turn on your camera. Sir, Please it turn is on your turned camera. on. Okay, you are there. Just okay. So Vishwajit is there. Cool. Okay, so this is going to be a unstructured GD. Okay, and the simple rule is you guys have initially like a 10 minutes to discuss on a topic. Okay, before the topic, let's come to a topic. If I give you like first, I will give a topic. You guys have 1 minute to think on it. You can jot down all the points, whatever you want to jot down. You can use a pen and paper, right? After that, I will announce in the chat box. You can start a GD. Okay, then you will have 10 minutes to discuss the topic, and after that, I will like again I will in a chat box I will write that is conclude the GD. Then you will have 1 minute to conclude the GD. Got it? 1 minute to prepare your points. Then when the GD start, you guys have 10 minutes to discuss. After that, you guys have 1 more minute to conclude the GD. And when I ask to conclude a GD, remember, it's a basic rule of GD. If like in 1 minute कितने लोग conclude कर सकते हो? By the way, ये बताओ. 1 मिनट में कितने लोग मतलब यहाँ participant I guess 10 to 11 participant है तो कितने conclude कर सकते हैं? Only one. Only one, right? So किसी एक को ही initiative लेना है और conclude करना है. Once the conclusion is done, no one can add more points in the discussion. Okay? Hope you got a rules. किसी को issue है? Or do you want to ask any question? कुछ है? नहीं ना? Hope it is clear. So let's come to the topic. So your topic is okay. Let me give first a timeline. From 5:16, 5:16 पे you have to start discussion. Okay, and your topic is ethic or profit. Your topic is ethics or profit. Okay, so I would be taking the initiative to start the GD. So I personally believe that in today's world, we see a number of organizations that are running toward the profit. But in order to grow in the long term, an organization which has a core ethics as its base always sustains in the long term. Like in India, we can see the examples of Tata Group to the likes of many other corporates like Reliance Adani. But whenever the Tata Group launches a product, people always have much more faith in the Tata Group product than in the products launched by other groups. So I believe that ethics is much more important and profits is a byproduct of it. Understood. Adding to the I point of slightly, my friend can I put Shagun.
that I slightly whenever disagree ethics with are being broken, we have seen a recent example where Larsen and Turbo's chairman commented something related to 90 hours a week, and later on in the same week, it costed them a 70,000 crore contract. Yeah. So broken ethics costed them a lot. And whenever a company follows ethics, it brings goodwill to the company and it's better in the long term, as Shagun said. Having ethics with business is What I think very in this definite. context is that this cannot be like black and white, like someone has to pick ethic and someone has to pick profit. I think it is more or less based on the situation, what kind of situation we are facing ahead. Like there were certain situations where a company have to choose prefer their profit. Like there may be some situations arises where you cannot choose for ethics because it will surely gonna cost the country huge amount. So what I think it is more situation based rather than just simply choosing one. Yeah, I so think we because should. I think we should choose ethics because ethics promote trust and loyalty, which will eventually lead to customer retention and customer loyalty. Ethics also include employee satisfaction. If a employee is working on a company which promotes ethics, it will provide him a better work environment which he will be feel valued. I completely at the agree same with the time, point that the ethics shouldn't be compromised because the core values of a company doesn't it is in their foundation, and if that thing goes for a toss, the entire company's future is on the line. And in our North India, we always say sleep. A person can sleep well if he's very ethical and having a good decisions making powers. So this is personally I feel. but at the same time, without profit, a business cannot sustain itself or support employees. And we do have the investor expectations as well, because shareholders demand returns. They often put pressure on companies to prioritize profit as well. So I think we need to prioritize profit as well over ethics. Adding So different I things agree to with ethics. consumer, Ankush's point that Here it is I feel it Satyam is slightly right, because I feel we have to look after both, because country is liable to all its investors. So like thinking all 100% just on the basis of ethics will surely compromise with the company's profit, and the company is answerable to the investors. So I think it is the balance. It is the balance that a company maintains I between agree both. with your point, but I feel like ethics is something which is needed for any organization. So as profit, so profit is what runs organizations and businesses. But ethics is something which protects the people who are working for these profits, their employees. So protecting their basic rights and protecting them from absurd things like 90-day work hour. For these things, ethics is very important. At the same point, profit will eventually come, and both should go hand in hand. Yeah, I believe I this would is the like Ethics, point to where add I to don't ethics, think the it I should be believe ethics are compromised. example. sacrosanct for any organization's growth. And if I just have to put an example that when a company is having the profit, then it is mandatory for them to put their expense into CSR for the CSR activity. But I have seen some cases in my real life as well as from the newspaper that while few of the companies that on the account of CSR, they give money to some of the institutes and then take the money in black again from them. So this kind of practices, when they get reported in the newspaper, the companies face a lot of backlashes, and they have, like in majority of the cases, on account of these backlashes, they have suffered a huge amount of their profits as well. So I believe ethics is sacrosanct for any entity to grow. and if the company would not maintain the ethics, it won't be able to stand out in the market, because consumers, if they are getting exploited, they don't be coming to the company, and they will feel rejected, and consumer rights would also be discriminated on that behalf, and fair labor would not be given to the members of the company. So I think for sustainability and fairness, it's important that ethics should be followed. I feel Adding an ethics Right are now, example necessary for to a this, company, I coming would to an but like the to share point example, is the at the coming to cost an of example compromising with of the the ethics is not. various, I want to put coming to the forward a example point of the here. various, As coming Nandini to the said, example of the various nutritional supplements which we are giving it in the market. I want Like to for put forward a example, point. the Like as Patanjali Nandini has said, like introduced the his ethics own is something Chyawanprash. that will. The Chyawanprash says it has 51 herbs, but on the label, if you go deeper, you will find that it contains 50 to 60% of sugar, and they are just selling the sugar for the name of Chyawanprash and energy booster.
So I think that the current situation does not give ethics more priority in the market and in the corporate, and they are running for their profits by promising fake attempts and fake things to the consumers. Yeah, So agree with consumer you. protection is very important right now. I want to like mention here. I think both go hands in hand. Like let's say for a moment, like a company who maintains a good ethics. So it obviously it would be having a good image. So a good image came like brings a good profitable margin. A company has a better future. And let's say a company has a better future, better profit. Then surely it is going to be good ethically. Like the most of the companies who are not good ethically are the country or the companies which are not making good profits. They are in the loss. That's the reason they have to like compromise with the ethics. So I think that the both go hand in hand together. I agree with you, but I I think have two government points also to should make play a very for now. important role in making sure that every company is following at the ethics properly. So because the exploitation is happening, because I feel like somewhere the government intervention is not being done very accurately everywhere. So I think the reachability of the government and other organizations should be put in place so that companies will make sure they're following ethics as well as maintaining their business in a profitable manner. I Yeah, would And like to add ethics to following the are ethics very Vishwajit's important. is point. has also never Ethics put is their very important. ethical important way for We the can take on the the company's first example to of the put everything ethics are Byju's. very online, important for and the company's secondly, growth. Ethics Uh, are very the important for the company's what I growth, want to but mention here is you like but what we should aim for, what the government should aim for is to create a kind of environment where the companies don't even get to try to do unethical things. Like the environment should be like that the companies who are ethical should be like promoted, who should be encouraged. So But I think that it's, will foster a good environment. but there I are would like the always to a counter on this consumer government. point. protection rights. It's a There is sort of also impossible always a situation for a country like the government will be creating the guideline, but loopholes, everyone try to find out the loophole. So it should be coming from the companies, like from its values that we should follow the ethics. As we can see in a notable example of the Byju's, like how its sale executives were cheating people and like making like the parents yeah. like buying the false products, On addition and to it, eventually like on we are seeing like from a valuation of $21 billion during the COVID, now it's on the verge of almost bankrupt. So I yeah, believe like I would on like to addition to put this, 2 points also the forward. ethics of the Investors company never should be ask the considered in the companies to context of go the ethical values of way, the culture since of the ethical way country. put For example, companies on a positive when we PR, take the and there doesn't example need of much the marketing there. trademarking So on the it puts Britannia them cakes, on a positive the sweet cakes spot are in the marketed as vegetarian. The cakes were marketed as vegetarian in the different countries and were green labeled on them. But if in Indian context, since eggs are not considered as vegetarian, the judiciary has to intervene, and they marked it, made compulsory for the products that are made using eggs as non-vegetarian. So the culture and the people notions should be considered while making ethical concerns regarding the country as well. Ethics is important for long-term success, as we know that our famous Ratan Lal Tata. Tata follows ethics and also promotes animal sociality. And one thing I like to say, to overcome ethics, like there are certain challenges also, like corruption, which is there in our industry, which certainly adds a strain, adds a block to the ethics for the companies. Thank you. In the At the end, company, government has at the implied end, the what I feel is rules. like looking forward for some profits and compromising on the ethical part is something that will bring short-term success. But as Aman said right now, like for the long-term success, the company had to look forward, follow an ethical path. So that will bring a long-term foster and the positivity for the company. The I would like to put forward an example of 2611, where Taj Hotel staff put their lives on line to save people. The after this attack, the administration told that they check people's ethicality as well, whether they are ethical or not. Since nobody, if they are not ethical, will definitely not put their lives online. We So as a group would like to conclude that ethics and profit go hand in hand because it's important for a company to be profitable to sustain in the market but also be ethical.
ओके, सो क्या बोला था आपने, सोचा? Okay, so let's come to feedback part. Am I audible, right? Clearly? Is there any network issue? No, you are Okay, cool. So basically, when it come to very starting से पहले एकदम बेसिक पे बात करते हैं, किसी को हम पर्सनली लेते हैं, ठीक है? The very basic. I have found some of you are interrupting the other, although you know she was speaking, right? So this is something you should follow. Don't interrupt. If you know, देखो, because it is online, you might faces sometime कि yes, नेटवर्क इशू है तो मुझे सुना ही नहीं आगे में क्या बोल रहा है. बट इफ समवन इज स्पीकिंग कंटिन्यूअसली फॉर 30 सेकेंड, others can able to like know yes, he is speaking, why should I interrupt him? Let him finish first, let her finish first, then I can continue, right? So I have seen Aman Verma and Ankush, these are two people. ये दोनों मतलब ऐसा बैटल हो रहा था, नहीं नहीं किसका आवाज जाएगा. अमन भी कह बोलते जा रहा है, अंकुश भी कह रहा है, दोनों एट अ टाइम, एंड दोनों को पता है कि वो बोल रहा है, राइट? बोथ ऑफ देम नो कि ही इज स्पीकिंग, उसे ही पता है कि वो बोल रहा है, तो मैं चुप हो जाऊं. बट नो, बाद में अंकुश चुप हो गया था. ऑल्दो अमन, यू आर अ प्रेप स्टूडेंट्स, वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि आप ऐसा करो. अगर आपको लग रहा है कोई बोल रहा है तो जस्ट वेट, आप चुप हो जाओ अगर वो नहीं रुक रहा है तो. एंड ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ है. तो दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई सेड. इवन बीच में नंदिनी बोल रही थी, एंड दैट टाइम आल्सो अमन, प्रथम, ऑल जम्प. ओके, आई डोंट थिंक सो अमन था कि क्या, बट प्रथम था, मैंने प्रथम का नाम याद है. एंड हु इज देयर? अंकुश 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 नहीं बोला था उस टाइम, आई डोंट नो, नाम याद नहीं आ रहा मुझे. बट प्रथम वाज देयर, प्रथम भी बोल रहा, नंदिनी बोल रही, एंड देन समवन और भी एक दो लोग बोलने लगे. सो यहाँ ठीक है. एक्चुअल जीडी में इफ इट वाज ऑफलाइन जीडी, देन बी माइंडफुल. आपको पता है अगर आगे कोई बोल रहा है तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है, आपको बैठना है, शांत हो जाना है, ठीक है? इधर यू शुड स्टॉप. अगर आप बोल रहे हो, किसी और ने बीच में इंटरप्ट किया और वो फिर भी चुप नहीं हो रहा, तो आप जस्ट आस्क, लेट मी फिनिश, देन यू कैन कंटिन्यू. फिर भी नहीं मान रहा, लेट इट बी. गॉट इट? दिस इज द बेसिक हाइजीन रूल यू शुड नो. ऑल्दो ऑनलाइन है तो थोड़ा इशू आता है, आई अंडरस्टैंड, बट वहाँ नहीं होना चाहिए चीज, ठीक है? बिकॉज वहाँ भी हो जाता है. यू माइट थिंक कि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वहाँ, मतलब वहाँ ऑफलाइन होगा तो नहीं होगा, नहीं, वहाँ भी बहुत से लोग रहते हैं कि नहीं भाई हमें तो बोलना है, आप सुनो मत सुनो, हम तो बोल के रहेंगे. ऐसा सीन है. इन अ जीडी व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग, यू शुड बी अ गुड लिसनर, because at the end when you have to conclude, anyone, if you are taking initiative, in the conclusion, you, it means you have to summarize all the thing whatever you have discussed throughout the GD, throughout a period of 10 minutes. 10 मिनट बहुत होता है भाई, इतने लोगों ने क्या क्या पॉइंटर्स कहा है, बहुत से पॉइंटर्स कहे हैं. यू शुड बी अ गुड listeners. I know you are not able to add all the points at the end when you are concluding, but you should at least add more important points. Those are the important ones, those are good ones. नंदिनी, आपने कंक्लूड किया, राइट? एंड आपने जस्ट यू सेड कि जी मतलब प्रॉफिट और एथिक्स दोनों साथ में लेके चल सकते हैं. हम ऐसे नहीं बोलते कि किसी को छोड़ के जाना चाहिए या फिर किसी को एक को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए. दिस इज व्हाट यू कंक्लूडेड इन शॉर्ट, इन सिंगल लाइन. आपने सिर्फ इतना ही बोला. आपने बहुत सारे डिस्कशन में क्या हुआ बात वो नहीं किया. यू शुड से कि देयर आर लूपहोल्स दैट गवर्नमेंट, लाइक the companies are trying to follow, okay, or find loopholes, and then they should take a leverage from there, right? These are the points. Then someone talked about a Patanjali, someone talked about investor perspective, stakeholder perspective. You should mention all these things when you are concluding. तो ये चीज नहीं था. तो remember, note it. Next time when you are concluding, you should add all the important pointers those were discussed throughout the GD. ठीक है? I सिराज have भाई one doubt, कहाँ if you एकदम may हो गए हो allow. क्या, दिख नहीं रहे हो? कैमरा नीचे है. मैं दिख रहा हूँ कैसा बैठा हूँ? Am I visible to all of you guys? मैं बीच में हूँ, माई फेस Yes, इज sir. हियर, ठीक है? द डिस्टेंस यू कैन सी द बिटवीन द कैमरा, लैपटॉप एंड मी, ठीक है? तो इतना डिस्टेंस पे आप बैठो, आपका पूरा फेस दिखना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग इन जीडी ऑल्सो. जब आप बोल रहे हो तो ऐसा नहीं आप घुस के बोल रहे हो, आप एकदम घुस गए कैमरे के अंदर. समटाइम्स फान की चलो अब बाहर निकल के आ जाएगा सीधा भाई, अब सामने से आएगा सीधा यहाँ बैठ के बात होंगी, अब यही डिस्कशन होंगे, कैबिनेट मीटिंग बैठाएंगे हम. I have one doubt, if you may allow. या आई कैन, लाइक मैं बताऊंगा, ठीक है? डाउट पे आते हैं, डोंट वरी, जस्ट वेट, लेट मी फिनिश. अभी तो मैं चालू भी नहीं किया यार, मैं तो लिखा भी है कुछ पॉइंटर्स आपके बारे में.
कुछ कुछ बोल रहे थे, समझ आ रहा था मुझे, समझ तो नहीं आ रहा था, सोच कोशिश कर रहा था मैं। अच्छा बोल रहे हो, मजाक कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स कम विद स्टार्टिंग। शगुन स्टार्टेड। पहले बेसिक आइडिया तो क्लियर है ना? बेसिक में किसी को डाउट है, ये फॉलो करो। ये देखो, जीडी में सब लोग के पास अच्छे पॉइंटर्स होंगे, सब लोग बोलेंगे अच्छा, बट वो आपको एलिमिनेट क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? दिस आर द बेसिक हाइजीन थिंग दे कैन चेक। इफ यू आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर, भाई उनको नहीं चाहिए, बाहर जा। मैनेजर चाहिए भाई उन्हें। वी स्कूल वांट टू प्रोड्यूस मैनेजर्स, राइट? मैनेजर्स को सबको साथ लेके चलना पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है भाई। आप अगर उसमें नहीं फिट हो रहे तो दे वोंट लाइक एंटरटेन यू, सीधा बोलेंगे ठीक है भाई जीडी में बाहर, सीधा बाहर। ओके, ऑल्दो यू कैन गो फॉर इंटरव्यू, बट समझ लो पहले ही बाहर हो गए। दिस इज द एलिमिनेशन राउंड, ओके, एंड द पीआई वाज योर सिलेक्शन राउंड। सो एलिमिनेशन में एलिमिनेट मत हो। यू शुड बी लाइक फॉलो द सम एथिक्स। अभी एथिक्स की बात ही हो रही थी, एटिकेट्स, यू शुड फॉलो एटिकेट्स बेसिकली। एथिक्स तो ठीक है, थोड़ा बहुत चीटिंग भी होता है वैसे। अंकुश भाई कुछ नीचे देख रहे थे क्या? फोन वोन ऑन था क्या? ये पहले बताओ, कंफर्म करो। नहीं, एक्चुअली मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करे थे। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लग रहा था यार, अभी बाजू में चैट जीपीटी ओपन है क्या, ऐसा थोड़ा मतलब पेन फील आ रहा था। फोन नहीं, हम्म। सब कुछ लिखा हुआ था मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मुझे, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अमन तो भाई एकदम स्ट्रेट, वो कुछ नहीं, उसका पता नहीं कैसे सोच कैसे लेता है भाई तू। इधर उधर मुंडी कुछ नहीं हिलाना, एकदम स्ट्रेट बैठा है। अमन वर्मा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम स्ट्रेट, बस बोले जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो रहता नहीं क्या वो, हैव यू गाइस वॉच्ड, वो एक वो सीरीज था कोरिया वाला, कौन सा था वो, साउथ कोरिया का कोई एक Squid सीरीज था Game. ना? स्क्विड गेम। हाँ, स्क्विड गेम। स्क्विड गेम में कैसे रहते वो खड़ी, ठीक है, एआई, वैसे भाई वैसा वैसे ही फील आ रहा था मुझे एक समय। आई वाज लाइक कि भाई अब भाई स्क्विड गेम से कहीं फायर ना करवा दे कहीं से। तो नो वरीज, चलो लेट्स कम टू पॉइंटर्स व्हाट यू हैव मेंशन्ड। क्या क्या हो सकता था और बेटर क्या कर सकते थे? शगुन स्टार्टेड। Okay, those are watching right now in audience, we have one more GD, so just wait. करते हैं एक और GD. Let's come to first the review part. Once we're done, then we will start second GD. Shagun started. आपने introduction अच्छा किया, and you have given example also. But when we're introducing the topic, what we recommend to you and all of you, जो those who are going to introduce, आप उसे अच्छे से समझाओ कि एथिक्स क्या है और ये क्या है। बट आपने अच्छा, मतलब एक चीज मैंने देखा, आपने एंड अच्छा किया था। यू सेड कि एथिक्स इज इम्पोर्टेंट एंड द प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट लाइन आई फाउंड कि यस, अच्छा बोला, ठीक है। आपने मतलब इंट्रोड्यूस किया कायदे से, और बेटर हो सकता था, बट आपने क्या किया, आपने वहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए, टाटा का दे दिया, एंड यू सेड कि देयर आर आल्सो अदर लाइक कंपनीज, यू कैन से रिलायंस एंड XYZ आपने बोला था। बट जब हम एथिक्स की बात करते, सोशल सर्विस की बात करें तो टाटा का नाम आता है, राइट? दिस व्हाट यू मेंशन, गुड पॉइंट। बट जो एग्जांपल था उसको आप बाद में भी अच्छे से एग्जाम एक्सप्लेन कर सकते थे, बट ठीक है, मतलब एक स्टार्ट के लिए भी अच्छा किया आपने, गुड स्टार्ट। आई वुड से गुड स्टार्ट, आपको इसलिए पॉइंट अच्छा खासा मिलेगा, स्टार्ट आपका अच्छा था, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज प्रथम, प्रथम गुप्ता। नाउ दिस इज समथिंग आई वुड से वन मोर थिंग, या नोट इट। अगर आपने कोई साइड, आपने बोला है कि आई वॉज अगेंस्ट एथिक, ठीक है, आपने अगर ये मान के चल रहे हो, अगर आपने पहले कोई आंसर किया है विच इज अगेंस्ट एथिक, तो आपको अगेंस्ट ही रहना है टिल द जीडी। यू डोंट हैव टू चेंज योर स्टांस, ठीक है। इफ यू आर सेड आई एम अ प्रो एथिक्स, मैं प्रॉफिट के अगेंस्ट हूँ, प्रॉफिट नहीं हुआ चलेगा लेकिन एथिक्स तो होना चाहिए, तो आपको वही पॉइंट, वही स्टांस लेके बात करना है। और आपने कहा था स्टार्टिंग में कि इट वॉज अ सिचुएशन बेस्ड, इट डिपेंड्स, जैसा सिचुएशन हो वैसा हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपने पहले बोला था। दिस इज व्हाट आई फाउंड कि आपने यहाँ बोला, बट एक और एंट्री आपने कहीं पे लिया था, एंड लेट मी सी, हाँ आपने उसके जस्ट 2 या 3 एंट्री बाद आपने आके बोला क्या मालूम है, हाँ किसी किसी कंडीशन में तो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। हाँ एक्चुअली सर, आई व्हाट आई वांटेड टू मेंशन वहाँ पे सर कि मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी एथिक्स को ही हमेशा, जो कंपनी एथिक्स को ही हमेशा मान के चले या फिर प्रॉफिट को ही मान के चले। तो मेरा ऐसा था कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है ऐसा। नहीं तो आप उसको सही से फिर एक्सप्लेन करो ना। आप जब बोल रहे हो, आपने क्या स्टांस लिया, मिडिल स्टांस लिया है, ठीक है। यू हाँ शुड चूज स्टांस टू बी अ डिप्लोमेट, हाँ राइट? इफ यू हैव हाँ चूज स्टांस टू डिप्लोमेट, देन प्रो क्यों हो रहे किसी के? आप उसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए फिर आपने
इट शोज कि यार आप प्रॉफिट का स्टैंस ले लिए सीधा। यू सेड कि एक्चुअली किसी के सर लिए profit मैंने is वही ट्राई important। किया था कि जैसे अभी डिस्कशन चल रहा है किसी पे प्रॉफिट पे, तो मैंने कोशिश किया कि हाँ उस पे भी इनपुट दूं, क्योंकि मेरा दोनों साइड स्टांस था। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि मेरा दोनों स्टांस है तो मैं दोनों साइड इनपुट दूं ऐसा। हाँ बट यहाँ पे आपने एथिक्स की बात भी नहीं की ना, ये सीधा अच्छा प्रॉफिट की बात हो रही है आपके। अब देखो इसके बाद आपने अगर और एक एंट्री लेके इसे जस्टिफाई करते हैं और अच्छा करते हैं, अब वहां पे आप एथिक्स की बात करते हैं, तो इट शोज कि आप दोनों स्टांस ले रहे हो। बट सर एक्चुअली आई यहाँ टॉक्ड अबाउट एथिक्स लास्ट, मैंने बात किया था एथिक्स के पे भी लास्ट पे, फिर अगर तो मेरे को आप। दिखा ही नहीं भाई कहाँ बात हुई, तो 4-5 लोग बोल रहे होंगे आई गेस। ठीक है, हाँ आई हैव मैंने टू किया वॉच रिकॉर्डिंग अगेन, नो सर, वरीज। मैंने तो ये कोशिश चीज किया है। कि मैं वो बना के चलूँ दोनों साइड, मैंने किया था ऐसा बात सर, मे भी आपने नोटिस नहीं किया होगा। हम्म, तो वो जो है प्रॉफिट जब आप कह रहे हो ना, अगर इन केस, तो वहां पे आपको अच्छे से मतलब उसको एक्सपांड करो, एलैबोरेट करो, समझाओ कि व्हाई आई एम सेइंग दिस प्रॉफिट, व्हाई आई एम सेइंग कि इन सम कंडीशंस इट इज लाइक नेसेसरी टू हैव अ प्रॉफिट। उसे आपने एक्सप्लेन नहीं किया होगा फिर, बिकॉज आई हैव सिंपली रिटर्न कि प्रॉफिट का आपने साइड ले लिया एकदम से। यहाँ पे आपने कहा सिचुएशन बेस्ड है, यहाँ कहा प्रॉफिट एकदम से। ठीक है, मतलब आप तो भाई वो यू टर्न ले रहे सीधा। नो सर, नो सर, एक्चुअली सर वैसा नहीं था। वो किसी ने पॉइंट रखा था कि एथिक्स ही जरूरी है, तो मैंने बोला था आई स्लाइटली डिसएग्री कि प्रॉफिट भी जरूरी है, ऐसा करके बोला था सर मैंने। ओके यार गाइस, दोस्त पार्टिसिपेंट कैन यू प्लीज कीप योर कैमरा टर्न ऑन, मुझे पता नहीं चलेगा नहीं तो कौन है, मैं फिर रैंडम दे दूंगा किसी को भी। देन कम्स अमन। ही कौन था? अमन सिंह था ये। अमन सिंह मेंशन्ड अबाउट एथिक्स एंड एम्प्लॉय वैल्यू, राइट? तो ये आपने कहा कि एथिक्स इंपॉर्टेंट है यार, अगर क्योंकि देखो एम्प्लॉयज भी भाई काम कर रहे हैं, एथिक्स नहीं रहेगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ गुड, ये सही लगा मुझे, मतलब आपने यहाँ आपने समझाया उसे कि एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। तो गुड पॉइंट, पॉइंट इज गुड, ऑल्दो और बेटर हो सकता था ये। ठीक है, आप अमन सिंह, यार अमन सिंह नाम आवाज पहचाना लग रहा है, कोलकाता वाले हो क्या? हाँ सर। अच्छा, वो शिवम सिंह के भाई। यस सर। ओके, आप लोग सोच रहे हो शिवम सिंह कौन है, अरे वो लास्ट ईयर का स्टूडेंट है हमारा, एंड ही इज, ये उसका भाई है, ठीक है। गुड गुड, मतलब अच्छा पॉइंट है, पॉइंट इज गुड। आवाज सेम है, दोनों की मैच हो रही है भाई एकदम। डिप्टो कहाँ, मतलब क्या खाते क्या हो भाई, एकदम मैच करने के लिए। सर ट्रस्ट एंड देन लॉयल्टी के बारे में बोला था पहले, मतलब उसके बाद फिर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के बारे में। ये पॉइंटर्स अच्छे थे। देन अंकुश, अंकुश, ओके आपके, मैं पहले आपका ही फिनिश करता अमन का। आपने जो सेकंड एंट्री ली थी ना अमन, अच्छे से जो एंट्री ली थी, वहां पे आपने बात किया था पतंजलि, नहीं पतंजलि तो अमन वर्मा ने किया है, ठीक है। टाटा का बात आपने किया लॉन्ग टर्म सक्सेस। हाँ, आपने फिर से आके इसको डिस्क्राइब किया था, आई गेस यही point आपने डिस्क्राइब किया है। तो यस। मतलब एम्प्लॉयज के ऊपर ही आप खेल रहे थे मोस्टली, तो आप उसमें ही थे, तो गुड पॉइंटर्स मतलब। एंड आपने दो ही एंट्री ली ना, राइट? टू एंट्रीज, हाँ भैया बाद में दो पता नहीं कहीं एंट्री। बीच में बोला होगा तो। नहीं नहीं, दो एंट्री। वही मतलब बीच में मुझे याद भी नहीं, तो दो एंट्री आपकी थी सिर्फ। आपने दो ही पॉइंट बोले, अच्छे बोले, एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से मोस्टली बोले, ठीक है। अंकुश की जो एंट्री थी, ये अच्छा था, ये भी मुझे लगा। इसने बोला कोर वैल्यू इंपॉर्टेंट है भाई, कितना भी कुछ बोलो, ठीक है, कोर वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है। अंकुश इज देयर, यस। एथिक्स कोर वैल्यू भाई, अगर आपके वैल्यू ही नहीं रहेंगे, और ये पॉइंट अच्छा लगा बिकॉज जस्ट आफ्टर अमन एंट्री यू हैव मेंशन दिस पॉइंट, राइट? इट शोज कि यस, फ्लो चल रहा है, फ्लो मेंटेन है, ठीक है। बात एथिक्स में हो रही, कोर वैल्यूज की बात हो रही, एंड यू हैव सेड कि कोर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे तो क्या है, आते जाते रहते हैं। बट यहाँ पे सत्यम ने काटा, सत्यम ने बोला ऐसे कैसे भाई, पैसे के आते जाते रहते हैं, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, स्टेक होल्डर क्या है, इन्वेस्टर कहाँ गए, राइट? तो अच्छा, ये काउंटर ऐसा लगा कि तुम जितने भी लोग पीछे तक एथिक्स एथिक्स कर रहे थे ना, तो सीधा मुंह पे चमाटा, क्या बोलते, स्टेक होल्डर कहाँ गया भाई, ठीक है, उसके पैसे की तुमको इज्जत नहीं है, उसकी उसका कोई ये नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो दिस इज द पॉइंटर इज गुड, मतलब एक ही बंदा मुझे लगा जो एकदम अगेंस्ट सीधा आके बोला, पॉइंट में दम था। अगेंस्ट जो बोल रहा है, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट जो सपोर्ट कर रहा ना, उसके पॉइंट में दम था, एक ही जो इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव जो कहा है, ठीक है। दिस इज द गुड पॉइंट, इसके लिए इसको आप +1 ले सकते हो। बाकी अभी तक जो तीन लोग ने बोला था, उन लोग ने सब एथिक्स के ज्यादा थे प्रो, ठीक है। प्रथम सिर्फ था बीच में खेल रहा डिप्लोमेटिक वे में, बट दिस इज द गुड पॉइंट। You should think about investor perspective also, and you had taught about this, so good one. Then I Vishwajit came. Vishwajit also said, huh? Actually, while I was in commotion with Aman, I mentioned a point that no investor suggests to go for an unethical way.
but I don't think if it get noticed or not. आई डोंट थिंक सो, फिर नहीं आया वो मेरे आवाज, आपका आवाज ही नहीं आप तो कहाँ एंट्री आखिरी आखिरी में एंट्री दिख रही कहीं पे फिर। सो हाँ मतलब I tried हाँ, many जो हो times, so सकता है how हो can I सकता है आपने navigate? किया हो। इफ Sorry. इफ दैट वाज अ पॉइंटर, अच्छा पॉइंटर था आपने, बट ये भी है देखो, टू बी ऑनेस्ट एथिक्स इंपॉर्टेंट तो है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, नहीं बोलता कुछ। आगे बढ़ते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। राज की बात है, उसको दबा दी जाए, ठीक है। अगेन अमन का, जिस अमन कह रहा हूँ, शगुन का, शगुन, ओके, शगुन की बात में क्यों कर रहा हूँ बार बार, शगुन बाद में आएगा अब। ओके, तो अमन ने, या अमन क्या कह रहा है, सत्यम, सत्यम का एक ही पॉइंटर था यहाँ पे जो सर दिखा सही से। मेरा कह रहा था आप। विश्वजीत, हाँ विश्वजीत आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ। तो सत्यम का जो था ना, सत्यम का ये पॉइंटर यहीं पे था, एंड देन ही इज डन फ्रॉम हियर। इसके बाद आई गेस आपने एंट्री नहीं ली सत्यम, राइट? और आपने बोला भी कहीं तो नहीं, मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे। चांस ही नहीं मिला सर। हाँ वही, आपने एक ही पॉइंट बोला, लेकिन अच्छा बोला, मेरे दिमाग में मतलब बैठ गया भाई, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा है, स्टेक होल्डर को तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो प्रॉफिट को हम वैल्यू देंगे एज कम्पेयर टू एथिक्स। गुड वन, बट और अच्छे से अगर आप एक एंट्री और लेते थे, एटलीस्ट यू शुड टेक 2 एंट्रीज, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, 2 तो लो कम से कम, अच्छे पॉइंटर्स बोलो। ऐसे नहीं आप आ रहे हो बोल रहे हो, क्या किसी को पता नहीं चल रहा। ओके सर। विश्वजीत सेड कि बोथ गो इन हैंड, सिंपल सी बात है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एथिक्स अलग कर दो, प्रॉफिट अलग कर दो। सो एज द स्टार्टिंग वाज, प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट, ओके, एंड एथिक्स शुड बी इंपॉर्टेंट। तो वही फॉलो आपने पॉइंट किया, उसके ऊपर ही आपने इसको डिस्क्राइब किया अच्छे से, गुड पॉइंट। देन श्रेयस ने इसको कंटिन्यू किया। Shreyas mentioned about CSR and a few companies. Now this is a good one. Reason behind, he is also describing and giving an example कि कौन कौन सी कंपनीज क्या करते CSR। बहुत लोगों को CSR ही नहीं पता होगा, ठीक है। आधे जन मतलब, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं भी था ना आपके इसमें, तो मुझे भी नहीं पता क्या CSR क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल, जो भी blah blah blah। तो ये पॉइंट्स अगर आप मेंशन कर रहे हो, इट शोज कि यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द कंपनीज, राइट? एंड आई गेस यू आर अ सीए, तो सीए हो तो भाई ये तो पता ही होगा आपको। तो मतलब अगर सीएस आई डाउट कि सीएसआर सबको पता था, आई वाज नॉट अवेयर, तो शुड आई लाइक स्टार्ट विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इन ब्रैकेट सीएसआर ऐसा? ब्रैकेट Why सीएसआर mention? बोले, कॉर्पोरेट सोशल नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बोले। कि हाँ, तो मतलब पूरा बोल के चालू करना चाहिए, ओके फाइन। हाँ मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, आइडिया नहीं रहता ना, उन्हें समझे कि किस चीज की बात करें, सीएसआर क्या होता है। आउट ऑफ द बॉक्स पीपल थिंक, अरे भाई ये क्या नया बोल दिया इसने, हमें अच्छा तो हवा ही नहीं लग रही है, बोल क्या रहा है, अच्छा, ठीक तो है है। वो कॉन्टेक्स्ट में ताकि ये तो मतलब मोस्टली सबको ठीक हाँ, है। नहीं बहुत लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, तो हाँ नहीं बेटर है कि आप मतलब पूरा बोल। जो फील्ड से मैं आ रहा था तो वो एटलीस्ट उधर मतलब सबको होता है, तो वो ओके, मेरे नो दिमाग में कंसेप्शन वरीज। था। हाँ। नंदिनी मेंशन, नंदिनी का पॉइंट भी सही था। शी इज हियर इन दिस सेशन, आई गेस शी लेफ्ट। Yes, sir. जो भी रिकॉर्डिंग देख लेना if you are not here. So you have mentioned the same pointers, like both go in hand, and you, now again you are also playing a diplomatic way कि भाई नहीं। और to be honest, in this kind of GDs you should have to be a very mindful when you are speaking or adding some point, because ये है ना, ऐसा टॉपिक है कि इस पे बहुत बड़ी मतलब डिबेट हो सकती है। अभी अगर इसको आज तक पे चलवा दे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आज तक पे पता नहीं कैसे डिबेट होता। तो दिस इज द थिंग समथिंग, तो आपने अच्छा, यू हैव आल्सो मेंशन्ड द सेम पॉइंटर्स व्हाटएवर दे हैव डिस्कस्ड, कुछ नया नहीं था, आपने भी सेम बात ही की है। अमन ने फिर आया पतंजलि का एग्जांपल दे दिया, ये सही लगा मुझे, कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, वही सेम बातें नहीं हो रही, यहाँ पे न्यू बात कुछ चालू की उसने। ही सेड कि पतंजलि च्यवनप्राश पे लिखा रहता है कि XYZ थिंग है, बट होता क्या है, होता है वहाँ पे सिर्फ शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भर भर के दे रहे हैं आपको। तो ये पॉइंट अच्छा लगा, तो यहाँ पे एथिक्स कहाँ गया, तो ये पूछ रहा था वो, आई गेस यू आर क्वेश्चनिंग, राइट? और एक्सप्लेनिंग समझा नहीं मैं, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चनिंग और क्वेश्चनिंग, बाकी लोग को पूछ रहे भाई एथिक्स वाले जो लोग हैं, questioning बताओ जरा। those तो who are all talking about ethics. क्वेश्चनिंग था ना वो। हाँ तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आंसर किसी ने नहीं किया, बट बाद में बाकी फिर प्रथम फिर से कह रहा था कुछ, विश्वजीत भी कुछ कह रहा था, लेकिन सब लोग वो क्लैश हो रहा था, लग रहा था क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया। सिर्फ मेरे को शगुन का पॉइंट याद समझ में आया, क्योंकि उसके बाद सब बैठ गए थे चुप। शगुन ने बोला लूप होल्स होते हैं गवर्नमेंट के इसमें, एंड कंपनीज ट्राई टू फाइंड दोज लूप होल्स एंड यूटिलाइज इट टू मेक श्योर टू बूस्ट देयर प्रॉफिट, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव मेंशन। देन यू हैव गिवन एग्जांपल ऑफ बाइजू, जिसके केस पे हुआ था कि इसका लूप होल था, इसने फायदा उठाया, उसके जो एग्जीक्यूटिव्स थे, एंड लो भाई पैसे छापे।
आगे बताना तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी 0 पे वो नहीं बताया। ठीक है, यू शुड मेंशन कि अब क्या हुआ। आई अच्छा कोई काम मेंशन करो, कि वो कोविड के टाइम पे 21 बिलियन था, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट ऐसे। अच्छा बोला था क्या, मेरे को सुना ही नहीं हाँ, आया, लेकिन बोला था बोला कि तो अब अच्छा बोला। ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है। Okay, if you have mentioned that, then good. The pointer is good. Yeah, there will be a second GD. Just wait. अब इसके बाद क्या हुआ ना, अब अमन और अंकुश का जो था ना मैटर, देवर लाइक आजा आजा 1-1 खेल ले आजा। एंड अब पता नहीं क्या बोल रहे थे। अमन तो भाई एकदम वो, मेरे को स्क्विड गेम ही याद आ गया भाई, अभी अभी यहाँ से कि बॉम्ब ना फेंक दे कहीं पे, किसी को गोली ना लग जाए। एकदम ऐसा बैठ के बात बोले जा रहा ना, ना अंकुश चुप हो रहा ना अमन हो रहा चुप। ठीक है, अमन को पता अंकुश बोल रहा है, ठीक है, अंकुश को भी पता अमन बोल रहा है, लेकिन चुप नहीं होंगे कोई भी। फिर बाद में अंकुश बोला छोड़ो भाई स्क्विड गेम का, कहीं एक दो गोली मर गए तो हो गया। तो ही स्टॉप, ठीक है ठीक है। 20 सेकंड बोलने के बाद आपने चुप है, 20 सेकंड यू बोथ स्पीक टुगेदर एंड देन स्टॉप। उसके बाद अमन ने क्या बोला मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो देख रहा था भाई कैसे बैठ कैसे सकता है ये, नो मूवमेंट, आंख भी नहीं हिल रही उसकी भाई की। ठीक है, देन अमन सिंह अगेन ही एंटर्ड, उसने फिर सेम बात की, एथिक्स वही बात हो रही। देखो अब बाद में नंदिनी ने फिर आके, नंदिनी ने फिर कुछ बोला, फिर प्रथम ने बोला, देन एट द एंड नंदिनी कंक्लूडेड। अब मुझे क्या लगा पता है, आप लोग जो है ना ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाए। ठीक है, यू शुड ऑलवेज यू पेस्टल आई विच वी हैव टॉट यू। ठीक है, एथिक्स प्रॉफिट्स की बात हो रही है, लेकिन आप उसको और ब्रॉड नहीं ले जा रहे थे, आप एक कंपनी और गवर्नमेंट तक ही आप स्टिक रह गए। देख रहे हो सिर्फ दो पर्सपेक्टिव आ रही, कंपनी गवर्नमेंट। कंपनी में सब आ गए, स्टेक होल्डर जिसकी बात की आपने, जो भी है कस्टमर्स आ गए, सारे आ गए उसमें कंपनी के अंदर। ठीक है, देन यू हैव टॉट अबाउट गवर्नमेंट कि कैसे गवर्नमेंट के मतलब जो लूपहोल्स उसका फायदा उठाते हैं एंड ऑल। बस इतना ही था। इससे सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या आ रहा वो सब बात नहीं हुई, वो भी हो सकता था। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, अब किसी ने जैसे बात की थी CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, उसके फायदे क्या होते हैं अगर हम एथिक्स फॉलो करें। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, छोड़ दो भाई एक तरफ, एथिक्स की बात करें, जो जैसे हम एथिक्स और प्रॉफिट दोनों को साथ लेके जैसे चल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल, उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, आम आदमी को, आम जनता को बेनिफिट क्या हो रहा है, ये भी बात हो सकती थी। वो सोच सकते थे ना आप लोग, इस डायरेक्शन में भी जा सकते थे। तो लेमन पर्सपेक्टिव से अब वहाँ बात नहीं हुई है। सेकंड, इंटरनेशनली नेशनली इसका इम्पैक्ट क्या जाता है, कुछ बड़ी कंपनी अगर ऐसा कुछ कर दे, जैसे बायजूस का आपने एग्जांपल दिया था, आपने बायजूस की हाल बताया क्या हो गया, 21 बिलियन जो भी था, वॉट एवर द वैल्यू यू हैव मेंशन, गलत होगा तो इग्नोर, जो भी है। तो कोटेड द सेम, उसके बाद अब वो 0 आ गया। ठीक है, अब वो 0 आ गया तो इससे बाकी को इम्पैक्ट क्या पड़ा, स्टूडेंट की तो बात ही नहीं कर रहे आप लोग, इससे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग को आके इस पॉइंट को आगे लेके जाके थोड़ा बात कर सकते थे, यू शुड डिस्कस मोर अबाउट दिस ऑल्सो। ठीक है, एटलीस्ट यू शुड ऐड वन मोर पॉइंट, जिससे बिकॉज एथिक इज नॉट फॉलोड, इसके कारण बहुत से लोग सफर किए, वो मेंशन कर सकते थे। ठीक है, एथिक्स फॉलो नहीं किया, उनके जो अभी वहाँ जो भी सेल्समैन रहते, जो भी उनको पेमेंट नहीं गया था, जो बच्चे थे वो अलग फंस गए भाई पैसे दे के। तो ये सब चीज भी आप मेंशन कर सकते थे, और मतलब बातें हो सकती थी, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें उसमें डिस्कशन हो सकता था। पतंजलि का जो था, आपने ये क्वेश्चन किया कि भाई एथिक्स नहीं, देखो शुगर बेच रहे हो वो, ठीक है, वो तुम्हें 40 रुपए किलो भी ला दो, वैसे शुगर खाना ही है तो वही उसे ही घोल के पी जाओ एक बार में पूरा च्यवनप्राश। ठीक है, सो यू शुड देन डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट, उससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है भाई, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। एथिक्स की बात कर रहे हो आप तो भाई देखो एथिक्स, यू शुड डिस्कस मोर पॉइंटर्स, आपने ये सब नहीं किया, ये डिस्कशन होना चाहिए था। ठीक है, लेट्स कम टू योर डाउट्स, आपके क्वेश्चंस कुछ होंगे तो वन बाय वन। वैभव, अनम्यूट योरसेल्फ देन स्पीक। सर अरे बहुत प्यारा मैंने है, लेकिन आवाज इसमें, हाँ अब ठीक है सर, अब आ रही आ है। रही है। सर मैंने इसमें एक ही लाइन बोली थी, उसके बाद ऑल ऑल थिंग्स की सब बीच में इंटरप्ट हो गया था, तो फिर मैंने आई डिडंट कंक्लूडेड फर्दर थिंग्स। तो सर इस केस में मतलब क्या क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द थिंग कि मतलब, बिकॉज मैं अपने आप देखो को नोटिस भी नहीं करवा पाया। यस सर। अब उसमें क्या है ना, एक रूल है, इफ दोज आर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट दे नो कि आपको कम से कम 2 एंट्री लेना है। एंट्रीज कैसे लेना है वो हमने GD सेशन में बताया था। ठीक है, अगर आप पहले एंट्री ले रहे हो तो कुछ समय 4-5 लोगों के बाद फिर से आके एंट्री लेके आप अपने जो पॉइंट्स थे, आपको जो भी कंटिन्यू करना है वो कर सकते हो। मिनिमम 2 एंट्रीज, अगर आपने 2 से ज़्यादा ले लिया, मैक्स 3,
वैसे 10 मिनट में कितना ही बोलोगे आप, 3 एंट्री में अच्छे पॉइंटर्स बोलो, जो भी एंट्रीज आप ले रहे हो अच्छे पॉइंटर्स बोलो, ऐसा नहीं कि आप रैंडम कुछ भी बातें कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने देखो जिनका मैं नाम दिया, मैंने सिर्फ बोला कि सेम पॉइंटर्स, वहां पे मैंने क्यों बोला सेम पॉइंटर्स, बिकॉज डिस्कशन सेम चल रहा था। यू गाइस आर डिस्कसिंग द सेम पॉइंट, जो पहले बोल चुके हैं, गो हैंड इन हैंड, साथ चलना है, उसके बाद कुछ कोई बात ही नहीं चल रही है। आप बस यही बोल रहे हैं हाँ हाँ एथिक्स को साथ लेके चलना चाहिए तो प्रॉफिट तो अपने आप आएगा ही, बस यही बातें कर रहे थे। उसके अलावा बहुत कम लोगों ने जो था न्यू पॉइंटर्स कुछ अच्छे ऐड किए, कोई सर एग्जांपल आई से। आई सर मैं मतलब ये पॉइंट्स बोलने वाला था, बट मतलब उसमें टाइम कम था कि सर स्टॉक्स को अपन आर्टिफिशियल बूस्ट करते हैं सर, तो उससे ग्लोबल इकोनॉमी को तो फायदा हो रहा है और जो कस्टमर्स है उनको भी फायदा होता है सर, और वो भी काफी लॉन्ग टाइम के लिए, काफी सारी कंट्रीज करती है सर ये सब चीजें। एंड तो उसमें एथिक्स और प्रॉफिट, एथिक्स तो अनएथिकल है वो चीज, आर्टिफिशियली बूस्ट कर रहे हैं, बट प्रॉफिट तो सबको रहा है, तो नोबडी सेज एनीथिंग अबाउट इट। एंड सेम जो अडानी हिंडनबर्ग का केस हुआ था सर, उसमें हम डिसाइड कैसे करें कि व्हाट इज एथिकल और एंड अनएथिकल, बिकॉज मतलब शेयर मार्केट में और बाकी चीजों में काफी सारा पैसा जो है इन्वेस्टर्स का वो लॉस हुआ था, बट नोबडी कैन डिसाइड विच साइड इज एथिकल ऐसा। तो आप ये चीज डिस्कस कर सकते थे ना उस टाइम। अब देखो आपने पर्सपेक्टिव दिया, बाकी लोग भी सोच रहे होंगे हाँ ये पॉइंट बोल सकते थे, लेकिन बोला नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बोलना आना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे पॉइंटर्स है ना तो एंट्री लो, अच्छे पॉइंटर्स है, बट यही है देखो लिमिटेड टाइम रहता है। यू शुड हैव, अज्यूम करके चलो, यू शुड हैव ओनली 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में आपको जो भी पॉइंट्स हो डिलीवर करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट कोई काट देगा बीच में, आपके पॉइंट भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो यूज अ लिमिटेड वर्ड, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है, अंटिल अनलेस इट इज नेसेसरी। जहाँ नेसेसरी है वहाँ पे करो। जैसे कि अब बायजूस वाला केस है, शगुन ने उसका एक्सप्लेन किया था, ऑल्दो मैंने नहीं सुन पाया बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू होगा आई गेस। शगुन ने अगर उसे बताया 30 सेकंड 40 सेकंड में कंप्लीट किया है तो अच्छा किया उसने। विल सी द रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग देखूंगा उसके बाद पता चलेगा मुझे क्या उसने कहा था और भी, राइट। तो ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड एक और चीज ध्यान रखना, 2 एंट्रीज अगर आपने ले लिए हो, अब आप बहुत देर से आप वेट करो कुछ नहीं कर रहे हो, तो आखिरी में कंक्लूड अगर करने का टाइम आया, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टेक इट, आपको रोका किसने, राइट। बट अगर आपने 2 से 4 बार ऑलरेडी बोल चुके हो, उसके बाद आखिरी में आके फिर आप फिर कंक्लूड भी कर रहे हो, तो ये थोड़ा नेगेटिव में चला जाएगा। इस सोच कि भाई तू चाहता है कि तू खुद ही बोले सब कुछ, राइट, बाकी ओके को सर। सुनना नहीं है ना बाकी को बोलने देना है, तो ग्रुप डिस्कशन का कुछ मतलब ही नहीं रहा वो। आप तो समझे ये बात। सो दीज आर द पॉइंटर्स यू शुड फॉलो। बहुत सी चीज़ें बोलने के लिए, बहुत सी चीज़ें नहीं, फॉलो द फ्रेमवर्क्स एज वी मेंशन टू यू, ठीक है। एक पेस्टल आई है, उसका यूज करके आप बहुत सारे पॉइंटर्स बोल सकते हो। देखो ये पॉइंटर्स बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, रिमेंबर पेस्टल आई का फुल, किसको पता है पेस्टल का फुल फॉर्म? अच्छा बोलो जरा एक एक, पी बोलो। एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, मैं पी बोला, पी से बोलो, पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, environmental, एनवायरमेंटल, या ठीक है। एस से social, social, टी से टेक्नोलॉजिकल, technological, ओके, और क्या था? एल, एल आता ना? लीगल, हाँ ए, ई legal, एक और आता है, ए भी आता है, ई 2 आते हैं ना, एनालिटिकल ऐसे। यस। पेस्टल क्या आता है? सॉरी सर मैं भूल गया, तुम्हारा एल ई आता है, सॉरी। ई फॉर एल ई देन इकोनॉमिकल, लास्ट, इकोनॉमिकल, economical, एंड व्हाट अबाउट आई? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, भाई सब जीडी में आ चुके हैं, सबको पता है क्या क्या बोलना है। तो ये सारे ये इसको यूज करो, इससे पॉइंटर्स आप निकालो, ठीक है। अब ऐसा नहीं, आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स आस्किंग सर पेस्टल आई एम अनेबल टू यूज इट। एक्चुअली द पेस्टलाइज फ्रेमवर्क इज नॉट यू हैव टू टॉक इन अ मैनर कि पी से बोलूंगा फिर ई से बोलूंगा एस से बोलूंगा, नहीं। यहाँ इसे यूज करके यहाँ से पॉइंटर्स निकालो, थिंक इन दोज डायरेक्शन। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बात करो, ठीक है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात करो। अब आपको प्रेजेंट कैसे करना है, देन यू शुड फॉलो फ्रेमवर्क दैट इज स्टार, स्टार अप्रोच हो गया, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस हो गया, फॉलो दीज फ्रेमवर्क टू आंसर इट, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो आप। बाकी अगर आपने जीडी का सेशन नहीं देखा हो 2000 प्रेप बी स्टूडेंट, तो देख सकते हो। जो प्रेप बी नहीं है, वी आई गेस हैड वन जीडी सेशन लास्ट ईयर जो यूट्यूब पे अपलोडेड होगा, ठीक है। तो वहां से जाकर फ्रेमवर्क देख सकते हो। इवन द वैट सेशन हुआ होगा, उसका फ्रेमवर्क भी आप यूज कर सकते हो। फ्रेमवर्क्स आर सेम, यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज इट। तो वैट सेशन में आपको पता चल जाएगा। यू शुड जस्ट सिंपली गो टू प्रेप बी, एंड जो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, 1 साल पीछे जाओ और देख लो।
Sir, I have a doubt. May I ask? Yeah, Aman. Yeah, Shagun said about Byju's and the legality loopholes in the legal structure. I had a point regarding the consumer protections rights and the policies that are being amended. And in that context, I have the point related to what the Supreme Court has said on the marking of labeling vegetarian or non-vegetarian on eating products or grocery. So I had to add that point in consecutive to Shagun, and the Ankush came with in conversation with me, and then a conflict arose. So shall I keep it for other, or if I tends to add to the point, I have to do the same as I have done today? यार देखो, आप अगर आप पहले बोलना चालू किए है ना, ठीक है, पॉइंटर आपके अच्छे थे, बट आप अगर पहले बोलना चालू किए तो आपको पूछना है ना, हमने क्या समझा है। अगर आपको पता है अंकुश बोल रहा है, शगुन बोल रहा है, इंटरप्ट किया पहले तो सबसे ज्यादा, तो आपको पॉइंट जो बोलना चाहते थे वो आया नहीं पूरा क्लियरली निकल के, ठीक है। तो आप यू शुड सिंपली आस्क लेट मी फिनिश, ठीक है, लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन गो अहेड और यू कैन गो नेक्स्ट। ऐसे आप परमिशन लेने में कुछ हम छोटे थोड़ी हो जाते हैं। आप दोनों एकदम टक्कर दे रहे हैं, नहीं नहीं तू समझ जा खुद से, देख ले मैं बैठा हूँ, दिख नहीं रहा तुझे, आंख से देख रहा हूँ मैं, चील की निगाह है, अभी वहीं पे खा जाऊंगा। नहीं सर, I will take care of this for the next. ठीक है, तो ये Actually, ध्यान दो। I also have one question regarding the same. Basically, the situation occurred ऐसा कि I tried getting in for the conversation like 3 times या 4 times उससे पहले, but unfortunately I was patient और कोई ना कोई आकर के मेरी बात काटे जा रहा था बार बार. So how can I just evade this thing and maneuver out? देखो, बिकॉज इट इज ऑनलाइन, तो हो सकता है कि किसी का नेटवर्क इशू हो, तो इशू आ रहा हो वैसा, बट ऑफलाइन होगा तो ये तो बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी वहाँ भी होता है। तो मैं वही सिंपल जो मेथड था बता दिया आपको, टेक अ परमिशन। अगर आपने चालू किया है तो, अगर आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हो तो उसका लिमिट होता है, मतलब कब आप इंटरप्ट कर रहे हो। सो वो मैं बताऊंगा आपको, देखो समझ लो। अमन ने स्टार्ट किया बोलना, अमन 2 मिनट तक बोल रहा है, लंबा बोले जा रहा है, बोले जा रहा। नाउ यू, आपने सुना, अरे यार भाई इतना लंबा बोले जा रहा है, अकेला ही बोल देगा पूरे 10 मिनट है तो इंटरप्ट करो। टेक द 1 सेकंड पॉज, मे बी सांस लेने के लिए 1 सेकंड पॉज लेगा ना, ठीक है, वो 1 सेकंड के पॉज में घुस जाओ, अपना बोलना पॉइंटर चालू कर दो, उसको समझ में आ जाएगा कि वो बहुत लंबा बोल रहा है। Actually, I have interrupted Shagun, but he was not interrupted by me. So I take back seat, and again when he ended, Ankush came in. So that I apologize for that behavior. Sorry. भाई बोलते ना, जैसा करूंगा वैसा मिलेगा तुम्हें भाई, ठीक है। शुक्र मनाओ शगुन ने इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। Yes. Okay guys, so first GD we are done, so we are going to start the next GD. I'm going to stop the recording for now. तो जो फर्स्ट GD जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बाय बाय गाइस, check out the next video for second GD.